marginal efficiency of capital. We'll understand what's marginal efficiency of capital, and then we'll look into the various definitions of marginal efficiency of capital. So marginal efficiency of capital is also known as MEC. MEC इसका short form है basically. So marginal efficiency of capital is the expected rate of return from an additional unit of capital asset. So the expected rate of return that I have underlined is very important from an additional unit of capital asset. This additional is again very important. So you have to keep these two things in mind. So marginal efficiency of capital होता क्या है? Marginal efficiency of capital मतलब जब भी कोई इन्वेस्टर या प्रोड्यूसर किसी चीज़ में इन्वेस्ट करता है उसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, ठीक है. तो अगर वो जो इन्वेस्ट कर रहा है उसमें उसका कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा अगर प्रॉफिट आता है तो ही वो इन्वेस्ट करेगा. तो जब एक प्रोड्यूसर इन्वेस्ट करता है ये सोच के करता है कि उसको अगर वो इतना इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको इसमें इतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा. दैट इतना ज़्यादा प्रॉफिट का परसेंटेज इज कॉल्ड द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल. We'll see it with an example. Suppose a tailor has 5 sewing machines and he plans to buy one more sewing machine, okay, and the price of a sewing machine of a good quality, let's say, is 10,000 rupees, okay. तो क्या हुआ, एक और स्विंग मशीन को ऐड करने के लिए उसको 10,000 रुपये का कॉस्ट प्राइस लगेगा, राइट. अब ये क्या है, अच्छे क्वालिटी का स्विंग मशीन 10,000 रुपये का एक टेलर खरीद लेता है, ठीक है. अब ये 10,000 का एक स्विंग मशीन खरीदने से उसका काम बढ़ता है, उसको प्रॉफिट होता है लेट्स से 5,000 रुपीज़ का. तो अब ये प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, 5,000 बाय 10,000 इंटू 100. तो इसका जो प्रॉफिट परसेंट आएगा, प्रॉफिट का एक्चुअली फॉर्मूला भी होता है कि प्रॉफिट बाय CP इंटू 100. तो प्रॉफिट हुआ उसको 5,000 का, एक एक्स्ट्रा स्विंग मशीन इंस्टॉल करने का कॉस्ट उसको लगा 10,000 एंड इंटू 100. जो इसका जो परसेंटेज निकलेगा विल बी इक्वल टू द MEC, राइट. तो इसका परसेंटेज है 50%. तो इसको इसमें द टेलर को इसमें 50% का MEC का उम्मीद था. सो आई थिंक you must have got it, like what is the meaning of marginal efficiency of capital. So we'll see the definitions of marginal efficiency of capital again, and then we'll get deeper into the concept. So marginal efficiency of capital is the expected rate of return from an additional unit of capital asset. मतलब additional is important here because जब हम अपने existing capital stock में एक एक्स्ट्रा कैपिटल बढ़ाएंगे उससे हमको जो बेनिफिट होगा, जो प्रॉफिट होगा, उसका परसेंटेज इज MEC. आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस. देन वी विल गो टू द सेकेंड पॉइंट. सिंपली MEC इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ न्यू इन्वेस्टमेंट. मतलब जब एक इन्वेस्टर या प्रोड्यूसर इन्वेस्ट करता है तो वो एक प्रॉफिट ये सोच के करता है कि हाँ उसको इसमें ये इतना इन्वेस्ट करेगा तो उसको इतना परसेंट का प्रॉफिट होगा. तो दैट इतना परसेंट का प्रॉफिट इज MEC. Now we'll get into the definition. So this is a very popular definition given by Stonier and Haig. So this definition goes this way. MEC shows what an entrepreneur expects to be able to earn from acquiring one more asset of that kind compared with the price he has to pay to buy it. तो अकॉर्डिंग टू स्टोनियर एंड हेग MEC क्या होता है, एक एंटरप्रेन्योर मतलब जो प्रोड्यूसर या इन्वेस्टर जो कि एक्सपेक्ट्स टू बी एबल टू अर्न. मतलब जो इन्वेस्टर MEC इज दैट विच एन प्रोड्यूसर इज एक्सपेक्टिंग टू अर्न. वो उम्मीद लगा रहा है कि अगर मैं इतना इन्वेस्ट करूँगा तो उसे उम्मीद है कि उसे इतने परसेंट का प्रॉफिट होगा. दैट इज
MEC, right? And according to Kurihara, MEC is the ratio between prospective yield of an additional capital good and the supply price. So here we get two economic terms, that is the prospective yield and the supply price, which we are going to define in coming episodes. And then the fifth point is this concept of MEC was propounded by Irving Fisher in 1930. He defined it as the rate of return over cost. तो द कॉन्सेप्ट ऑफ MEC ये डिवाइस किया था इरविंग फिशर ने. ही इज़ अ वेरी पॉपुलर classical economist, and he devised it in the year 1930. He defined it as the rate of return over cost. तो ही डिफाइंड इट एज द रेट ऑफ रिटर्न ओवर कॉस्ट. रेट ऑफ रिटर्न हो जाता है हमारा प्रॉफिट, एंड ओवर कॉस्ट मतलब वो एक एक्स्ट्रा कैपिटल को इंस्टॉल करने के लिए व्हाट इज़ द कॉस्ट दैट वी हैव टू बियर इज़ द कॉस्ट, राइट. तो यहाँ पर जैसे कि हमको प्रॉफिट एक एक्स्ट्रा स्विंग मशीन को इंस्टॉल करने से हमारा प्रॉफिट होता है 5000 रुपीज़, ओके. और वो एक्स्ट्रा स्विंग मशीन को लगाने का, इंस्टॉल करने का कॉस्ट प्राइस जो होता है वो हमको 10,000 रुपीज़ पड़ता है. तो उसका MEC कितना हुआ? MEC हुआ 5000 बाय 10,000. दैट मीन्स प्रॉफिट बाय द कॉस्ट प्राइस. So MEC is 50% that way.